And we're live, guys. So, welcome back, all our viewers. Welcome to another webinar of the Big Butterfly Month. And today we are joined by two very well known lepidopterists with butterflies of Western Himalayas working in the Western Himalayas. Let me introduce them to you. Muhammad Akram Awan is from Punjab, Pakistan. He's an independent researcher and is known as the Butterfly Man of Pakistan. He is one of the leading butterfly experts from South Asia. So, just from our neighboring country, welcome Akram Bhaiya. Thank you. And we also have Taslima Sheikh from Jammu, who is a researcher on butterflies. Thank She you. is the author of the book Butterflies of Pir Panjal range of Kashmir, Himalaya. Taslima and Akram together have prepared the checklist of butterflies of the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. So, welcome guys. Welcome Taslima Di. How are you? Fine. Great. So today the discussion is with a very interesting union territory of India, Jammu and Kashmir. We all love Jammu and Kashmir, Leh, Ladakh, and so much. And today we will be discussing about the butterflies that are found there, right? Not only Jammu Not and only Kashmir, but also Not only Jammu and Kashmir. Apart from Jammu and Kashmir, also we would be traveling through the talks. We would be traveling into the Khyber Pakhtunkhwa, into the northern parts of Jammu and Kashmir, into Baltistan, into Uttarakhand, and into the Himachal Pradesh. We would travel through the entire Western Himalayas through the talks of these two maestros. So it's Great, all over great. to Taslima and Akram. And today, since we are removing the barrier of the countries from yeah. one from Jammu and Kashmir and the other from Pakistan, since we are uh, removing this barrier of countries, the political barrier, through the our message of love and butterflying and nature, we would also love to remove the barrier of languages. So we can use any languages the speakers can use. If they wish, they can also talk a Talk. bit in Urdu. We would be very much happy to find the Hindustani culture back through it. Thank you. Okay. Definitely. Okay, over to you, Akram Bhaiya. And Okay. I'll be there in the background, back end for support. So if you need me, just say my name. So, Assalamu alaikum, and to all. You talked about the removal of the barrier of countries. This barrier was basically removed in 2016 by Mr. Isaac Kemikar. When he contacted me, I was very, I was just a beginner in butterflying field, and he asked for some picture for his book, his magnum opus book, Butterflies of India. He asked for some pictures from me, and I gave him the pictures, and those pictures got published in his book. That time, Isaac Kemikar said that for people who love butterflies, borders don't matter, and that was true because all my teachers were from India. India when I started butterflying. Without my teacher in India, like Isaac Kemikar and Peter Smitasic, and there are many other names, but these two are, they are real teachers. That's why they are worth mentioning. Without their help, maybe I was not into in this field. So we will be talking about butterflies of Western Himalaya region. So firstly, can you see the map? Hi, can you see the map? Yeah, the Yes. map's visible. Okay. This is Himalayan range. Can you also see my mouse cursor or not? Taslima? Yes. Yes, you can. Okay, this is the Great Himalayas, which lies between India, we can say Indian subcontinent and China, basically, and it stretches from Islamabad to Arunachal Pradesh, I guess.
I don't know much about Eastern Himalayas because that's not my region. That's not that doesn't come in scope of my studies. But I think to the east it is till Arunachal Pradesh. But to the west, I know that it start from Islamabad, and my hometown is close to Islamabad, Taxila, which is a very famous archaeological city, and that's where the Himalayas start. Taxila, Islamabad, then Murray Hills, then Abbottabad, Mansehra, Kahan Valley. This is Islamabad. We can say that the Himalayas start from our side from this point. And Islamabad ranks, I think, the second most beautiful capital in the world. And let me tell you that Islamabad has 155 species of butterflies, and in the whole Pakistan, it's about 450. So this is our region, the Western Himalayas, which is also the topic of our today's talk. In India, you have three states which fall under Western Himalayas. One is uh, Uttarakhand in the east, and in the middle it's Himachal Pradesh, and to the west it's Jammu and Kashmir. After that, some disputed territory comes, and as we talked in the beginning, that the people who love butterflies, they don't think about these things. And then comes Pakistan Himalayas. अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्ट किया था from Islamabad, the same region, Murray, Islamabad, Kahan Valley, Swat Valley, and these all come in. This is Eastern Himalayas. They all fall under Western Himalayas. So the difference between Eastern and Western Himalayas is huge. I'm showing some species which are very similar. In fact, formerly these species were considered to be one species, two subspecies or of a single species. But now they have been proved to be distinct species, and one is Eastern Himalayan and the other is Western Himalayan. The first example, to the very top left pair of the species is Western Kotar and Eastern Kotar. Western one is found in Pakistan Himalayas. In fact, it also enters Chitral Valley, which does not come in Himalayan region. Chitral is Hindu Kush, but its distribution starts. No, I think it starts from Afghanistan through Chitral to Swat and Abbottabad, Mansehra, Kagan Valley, both Kashmirs, and to the west, maybe it enters Himachal. I don't remember exactly. Himachal Yes, and it is in Uttarakhand. Yeah, Himachal also. yes, it does. It does. Yes, it does because the picture I am showing is also from Uttarakhand, and on the other hand, it's Eastern Himalayan, Eastern Kottayar. The same is true for Western Blue Sapphire and Eastern Blue Sapphire. The difference is very, very, very subtle, but these are separate species. Then on the right side, the top pair is of West Himalayan five ring, which is also called Moor five ring, and Eastern Himalayan five ring, which is usually called only Himalayan five ring. These are very similar. In fact, sometimes some specimens also confuse me, but these are distinct species based on generalia. And then large three ring, which is a West Himalayan species, and Newar three ring, which is East Himalayan species. But these days we are noticing that maybe both species are found in from Swat Valley to Eastern Himalayas, and perhaps Nevara is a very rare species which is restricted to Western Himalayas, which means that Nevara is found in the whole Himalayan region, but Narita is restricted to Western Himalayas. But we can still say that Narita is Western Himalayan species and Nevara is Eastern Himalayan species. Let me tell you some other relations
of Himalaya with Karakoram. There are two knots. You can say you can see there Pamir knot and Hindu Kush is attached to Pamir knot, but Karakoram is attached to Himalaya. Which it means that Pamir, the species which have affiliation with Pamir are found in Hindu Kush region, but the species which have affiliation with Himalayas are easily found in Karakoram. So Himalaya, basically, the point here is that Himalaya and Karakoram have very deep faunistic relationships. There is a place in Pakistan. You can see this trident. Uh, there are two rivers which are joining here, River Indus and River Gilgit. Gilgit River is, joining Indus here, and these three lines separates the three great mountain ranges of Asia. One is Himalaya, the second is Karakoram range, and third is Hindu Kush range. I have been to this point, and it's very interesting to see that all three great mountain ranges are joining here. And this is the viewpoint where we can get to see all three mountain ranges at one point. Yeah, here is the better explanation of this. All three ranges are pointed with arrows: Hindu Kush, Karakoram, and Himalayas. अगर आप हिमालय की तरफ जाओगे तो आपको हिमालयन स्पीशीज मिलेंगी, आप हिंदू कुश की तरफ जाओगे तो आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी, कराकोरम की तरफ आपको डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी, बट यहाँ पर इस पॉइंट पर you can get to see butterflies of all three regions mix, and the border between these three is Gilgit and Indus rivers. Indus and Gilgit river separates these three ranges. And if we talk about Himalayas, we have basically many sub ranges in Himalayas, but we will be focusing today on Karakoram, which is not Himalayas, but it has some relation with Himalaya, as I've told before. Then we will be discussing Great Himalayan Range and Pir Panjal Range. And इस picture में I can show you the Pamirs. You can see Pamirs, and adjacent to Pamir to the west is Hindu Kush. And Hindu Kush में काबुल अफगानिस्तान आ जाता है, चित्राल आ जाता है, and then इसके north में we have Karakoram range, and इसके थोड़ा सा south में the Great Himalayan range है, और उसके Pir Panjal is basically foothills of Himalayas. इस मैप में I've shown areas in Pakistan which falls under Himalaya, and you can see Ahmedabad, Swat, Naran. I have told about it in the beginning of my talk. And now I'm showing you some areas. I think I should be quick. इस तरह बहुत time लग जाएगा. This is Naran, which is very close to Kashmir, and Naran has so many beautiful butterflies, beautiful Himalayan butterflies of the Himalayan region, Western Himalayan region, including some endemics, which I will discuss later. And this is our Swat Valley. Swat Valley is very famous for Malala Yousafzai. She belonged to Swat Valley. And Kamrat Valley, which is also it is also under Himalayan region of Pakistan. Nathia Gully, very famous hill station and home of many beautiful butterflies. And Murray Hill Range, it is also a very famous hill station of Pakistan. And the only record of the freak butterfly was from Murray Range, post-partition. And this is our capital, Islamabad. As I've told before, that it's also under Himalaya, and Himalaya start from here. And this is my city, Texla. I have recorded about 110 species from Texla, and most of them belong to Oriental region and Himalayas. I will not be talking about the butterflies of Pakistan, because if I start talking about butterflies of Pakistan, it will become, so longer.
Just for intro, Pakistan has these 12 species which are endemic. इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. First one, we are starting from top left to right. Muller's meadow brown, it is found in Chitral. Pakistani wall brown, it is also found in Chitral. Alice's mountain argus, again from Chitral. Chitral silver line from Chitral. Chitral wall brown is from Chitral. Fine breaded meadow brown is also from Chitral. Astor argus, this is from Gilgit-Baltistan. Blissful wall brown, this is my favorite butterfly. It is again from Chitral. Foxy red fritillary is again from Chitral. Blotchy hair streak is from Balochistan, and Annie's rock brown is from Swat, and Balochi streak skipper is from Balochistan. So we can see that out of these 12 species, only 2 are from Balochistan, 1 from Swat, and 1 from Gilgit. The rest, all of the species are from Swat and Chitral. So Chitral is so interesting and so beautiful place, and it has so much to offer that I think we will need another session for talking about butterflies of Chitral. This is Chandu Top, world's highest polo ground, and it is in Chitral region. It separates Gilgit-Baltistan region from Chitral, and this is my favorite butterflying hotspot in the whole world. And this is Kanjra Pass. It is close to China border in Gilgit-Baltistan region. I will show some of the butterflies of this region, only a couple of them in next slide. And this is Trishmir. Trishmir is also in Pakistan, Hindu Kush, and it is the highest peak of Hindu Kush range. It also has so many butterflies. क्या क्या नाम लूं मैं? आपको कुछ दिखाऊंगा इसके बाद. And this is K2, world's second highest mountain, and the highest mountain of Karakoram range. So basically, the highest mountain of Karakoram and Hindu Kush range, both are situated in Pakistan. Now I'm showing some of the species which are found in these regions, and these are not Himalayan species. This is Ferganian fritillary, Militaya fergana. It is found in this region, Punjab region only in Pakistan, and it's very unique, very beautiful fritillary, because normally these Militaya fritillaries have a good amount of black markings on their upper side, but this is almost plain. There are only few black spots on its upper side. And this is I forgot his English name, Parnassus tenchanicus, and it's also found in Hindu Kush, Chitral, and Pamirs. I think this butterfly is not found in India, maybe. And Taslima, guess what? What is this? Do you know which species it could be, or at least you can even at least tell the family? I think Valoria genus. Taslima is mute. No. Am I not audible? No, you are audible, but your voice is a bit weak. मैंने ना earphone use नहीं किया. Let me use. I think this is Valoria genus. No, this is not Valoria. This is Polycina tamerlana. Its English name has not been coined yet, but Paul Wayne Gaze wrote Tamerlan fritillary. He created its English name, Tamerlan fritillary. It belonged to the Punch family, metal mark family, and this is the only member of its genus in the whole Indian subcontinent, and it's restricted to Khunjarab Pass, which is which lies under Karakoram range. This is my favorite genus, Toranana genus, and this species is Toranana laspura. It's found in Chitral and Tajikistan and Central Asia and some parts of Afghanistan. And
Sorry, the lower two images are very blur, but I'm sharing these because these two specimens were collected from India, from Ladakh, and the top two specimens are of the same species, which were collected from Pakistan, and the top one is Suranana chitrali subspecies Akramavani, and the the images which are below this are were collected from Ladakh. So this is the same species, Turanana chitrali. One was collected from Chitral region, and the second one was from Ladakh. And the picture is not clear, but one can easily see that these both are very different. Unfortunately, Turanana was not recorded after 2005 from Ladakh, maybe to my knowledge. But my guess is that the Ladakh population of Turanana chitrali is some different species, and I really wish that its real identity uh, is revealed. For now, it is Turanana chitrali, but it's clearly a different species. Everybody can see this that this is very different from chitrali Turanana. Now, Taslima, you will be speaking about your region, and then I will be showing some. I will be coming to Western Himalayan butterflies. Till now, I have only talked about the regions which are not under Western Himalayas. I have only talked about Karakoram and Hindu Kush. मुझे लग रहा है आपको Over थोड़ी to सी Taslima. प्रॉब्लम है। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? तस्लीमा जी हाँ, आपकी आवाज बहुत वीक आ रही है। मेरी? हाँ हाँ। मुझे लगता है ना अकरम सर को अभी कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उनका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगा बाद में स्लाइड्स में। अकरम भैया क्या आप कंटिन्यू करने वाले हैं अभी? क्या तस्लीमा क्या बोल रही है? तस्लीमा जी आप थोड़ा हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब तो और ही ऑडियो नहीं आ रही है। अच्छा आप म्यूट पे है तस्लीमा जी, एक बार अनम्यूट कर कीजिए आप अपने आप को। म्यूट खुद ही हो जाता है। अच्छा अच्छा अब ऑडियो ठीक है। अब मैं शेयर करूं स्क्रीन या अकरम सर कंटिन्यू करेंगे? नहीं, मैं आप शेयर स्टॉप कर शेयरिंग सकते हैं। मैं स्टॉप अकरम शेयरिंग भैया आप स्टॉप मत कीजिए, मैं स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा आपने कर दिया, ठीक है। कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है तस्लीमा जी आप शेयर कर सकते हैं। ओके। मेरा ना स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? हम देख सकते हैं आपको। अच्छा स्क्रीन शेयर करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी नहीं। नहीं अभी तक नहीं हुई है। वेट, इसमें अभी आ गया। वेट वेट, फुल स्क्रीन तो नहीं आ रही है। हाफ आ रही है। हाँ आ गई है। कंप्लीट फुल स्क्रीन आ रही है या हाफ? अभी मैं फुल स्क्रीन हाँ नहीं कर रही फुल हूँ। स्क्रीन नहीं, पावर पॉइंट वाली स्क्रीन आ रही है। अभी नहीं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से शेयर करके देखिए।
तस्लीमा जी, अभी आ पावर रही है? पॉइंट पावर पॉइंट की स्क्रीन आ रही है, फुल स्क्रीन नहीं हुई है। आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब देखिए एंटायर स्क्रीन ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करना है। वो मैंने किया, एक सेकेंड। शेयर स्क्रीन, अभी फुल स्क्रीन नहीं आ रही है? लोड हो रही है, एक सेकंड। नहीं तस्लीमा जी, अभी भी पावर पॉइंट वाली ही स्क्रीन आ रही है। मैंने तो फुल कर दी है यहाँ से। वहां से पावर पॉइंट से फुल स्क्रीन करने से नहीं, जब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना क्रोम से, तब आपको जी, एंटायर स्क्रीन ऑप्शन चूज करना होगा। इंटायर स्क्रीन लिखा हुआ आएगा, यहाँ जब पे तो आप ऑप्शन नहीं आ रहा है। अ, जब आप स्क्रीन शेयर पे जा रहे हैं ना, शेयर जी जी स्क्रीन यार्ड से शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, तो फिर देखिए जी। ऊपर देखिए एंटायर स्क्रीन विंडो क्रोम टैब, 3 ऐसे ऑप्शंस आएंगे। एक तो पॉपअप विंडो जैसा खुलेगा। वेट वेट, यस यस यस, इंटायर स्क्रीन मेरा हाँ हाँ, एंटायर। तो नहीं है। सॉरी इंटायर क्या? स्क्रीन में मेरी स्लाइड्स नहीं दिख रही, वो विंडो में जाके दिख रही है। आप इंटायर एंटायर स्क्रीन स्क्रीन, कीजिए। विंडो एंड क्रोम टैब, तो इंटायर। आप एंटायर स्क्रीन सिलेक्ट ओके, कीजिए, फिर हो जाएगा पूरा। शेयर। हाँ, अब आप फुल स्क्रीन करके पीपीटी शेयर कर सकते हैं। आप पीपीटी पे जाके फुल स्क्रीन कीजिए, हम लोगों को विजिबल हो जाएगा। Okay, जी hold on. विजिबल। विजिबल हो गया? हाँ जी। ओके, अब मैं स्टार्ट कर लूँ ना? श्योर श्योर श्योर। हाँ, जैसे कि हम वेस्टर्न हिमालय पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैप बता दिया हुआ है कि इंडियन पार्ट का जो वेस्टर्न हिमालय है, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाता है, तो उसके ही रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे निम्फलिड्स में ऐसे तो बहुत सारा चेकलिस्ट वाइज अगर हम देखें तो लद्दाख का 120 प्लस स्पीशीज है। जम्मू कश्मीर की अभी जो करंटली चेकलिस्ट हमारी आई थी, जिसमें 308 स्पीशीज हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर हम चेकलिस्ट की बात करते हैं तो उसमें 420 प्लस स्पीशीज हैं। और उत्तराखंड का तो अगर देखें तो 500 प्लस स्पीशीज वहां पे रिकॉर्डेड हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम मूव करते हैं तो स्पीशीज नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऐसे भी हम किसी भी बायोडाइवर्सिटी को लेके अगर देखें तो ईस्ट टू वेस्ट हमारा जो है डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है। अब जैसे कि वेस्टर्न हिमालय की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं सारी स्पीशीज की बात नहीं करूंगी। जो हमारे वेस्टर्न हिमालय की एंडेमिक हो या रेयर हो या बहुत ज्यादा वहां पे पाई जाती हैं और रेस्ट पार्ट में, इंडिया के रेस्ट पार्ट या पाकिस्तान के रेस्ट पार्ट में नहीं पाई जाती, हम उन्हीं स्पीशीज की बात करते हैं। निम्फेलिड फैमिलीज में जैसे सिल्वर स्ट्रिप्स हो जाती है, मीडो ब्राउन्स, रॉक ब्राउन्स, वॉल्स, सेटायर्स। लिस्निडी फैमिली में माउंटेन ब्लूज, मीडो ब्लूज, ग्रीन अंडरविंग्स, हेयर स्ट्रीक्स, कॉपर्स, जीबल ब्लूज। स्पिरिट फैमिली में आ जाती हैं ड्वार्फ वाइट्स, कैबेज वाइट्स, बाथ वाइट्स, क्लाउडेड येलोज। और ये स्वॉलो टेल्स में मोस्टली हम इस वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अपोलोज को ही हम देख सकते हैं। और अगर किसी को इन जगहों पे अगर आना होगा बटरफ्लाइंग के लिए तो बेस्ट सीजन मई से सितंबर का होता है, आप कभी भी आ सकते हैं। सबसे पहले जो मैं ये स्पीशीज बता रही हूँ, हेस्पेरिया कॉमा, जिसको चेकर डार्टर भी बोलते हैं, ये जितनी भी मैंने तस्वीरें यहाँ पे यूज करी हैं ये आईफोन बटरफ्लाई साइट से मैंने यूज करी हैं। और ये स्पीशीज भी जो हेस्पेरिया कॉमा की है ये सिर्फ हमारे यहाँ वेस्टर्न हिमालयन रीजन के कश्मीर और लद्दाख में पाया जाता है। ये वाली स्पीशीज जिसमें आप देख सकते हैं कि अंडर विंग इस तरह का दिखता है और अपर विंग में ये येलोइश कलर दिखता है, ऑरेंजिश कलर है।
दूसरी स्लाइड में मैं बता रही हूँ ग्रीन अंडरविंग्स। ग्रीन अंडरविंग्स में मोस्टली हमारे जम्मू कश्मीर में 2 ही स्पीशीज हैं, पमीरिया और गैलीथिया। और पूरे अगर हम वेस्टर्न रीजन इंडियन पार्ट की हम बात करें तो हमारे पास 2 से 3 स्पीशीज हैं ग्रीन अंडरविंग्स की, और इनका मोस्टली अपर विंग के बिना जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अंडर विंग को देख के हमें सब ग्रीन अंडर विंग ही दिखेगा, जब तक हम इसका अपर विंग नहीं देखते हैं तो तब तक हम नहीं बता सकते ये कौन सी अंडर विंग है। तो इसमें ये पमीरिया गैलेथिया है और दूसरा पेमेरिया ओम्फिजा मैंने शो करी हुई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज है, थर्ड वन प्लेबिजस दीवानी का, जो लद्दाख में पाई जाती है। डस्की मीडो ब्लू इसका कॉमन नेम है। ये वहाँ की अगर पार्ट की बात करें, इतना तो मुझे वहाँ का पता नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में भी पाई जाती है, बट लद्दाख में भी है और ये कश्मीर में भी काफी कॉमन है। इसके अलावा ये वेस्टर्न रीजन में कहीं पे भी नहीं दिखेगी, वेस्टर्न हिमालय में कहीं पे भी नहीं दिखेगी। ये स्पीशीज जो है स्यूडोफिलोट्स विक्रमा, ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है और वेस्टर्न हिमालय के किसी भी रीजन में आई गेस ये स्यूडोफिलाइट विक्रमा सिर्फ यहीं इसी पार्ट में, और कश्मीर और लद्दाख, आई थिंक हिमाचल में भी इसका रिकॉर्ड है, और उत्तराखंड से इसका अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और नेक्स्ट ये पॉलियोमेटिस जीनस, हम सबको पता ही है कि पॉलियोमेटिस जीनस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, जिसमें हम अंडर विंग से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें मेल का अपर विंग लेना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पॉलियोमेटिस सिड्यूरस की स्पीशीज बताई हुई है, जिसमें ये लेफ्ट साइड में मेल है और राइट साइड में फीमेल है। और अंडर विंग से तो हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि पॉलियोमेटिस जीनस से, बट इसका अपर विंग मेल अगर देखें तो हमें इसकी स्पीशीज पता चल सकती है। और इसका तो आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और मोस्टली हमारे ये वेस्टर्न हिमालय रीजन में अराउंड 6 स्पीशीज है इसका नंबर, और हमारे जम्मू कश्मीर में पॉलियोमेटिस जीनस से 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्पीशीज है एल्बुलिना लिहानस, जिसको माउंटेन ब्लू भी बोला जाता है, और ये स्पीशीज भी काफी रेयर स्पीशीज है, जो कि हमारे कश्मीर और लद्दाख पार्ट में ही पाया जाता है। सॉरी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ऐसी इन 3 जगहों पे ये स्पीशीज हम देख सकते हैं। अकरम सर, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ मुझे बता दीजिएगा। जी श्योर, बता दूंगा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बताई हैं 2 कॉपर्स हैं। जैसे कि आप वेस्टर्न हिमालय की अगर रेयरिटी देखना चाहते हैं तो ऐसी वाली कॉपर्स आप देख सकते हैं। लाइकेना आदित्य, जिसको हम लद्दाख कॉपर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है लाइकेनिया कैसियापा, ग्रीन कॉपर के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफी स्यापा। ये स्पीशीज भी हमारे चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और कश्मीर में काफी कॉमन है। अगर किसी को देखना तो आप आके देख सकते हैं। सॉरी, ये लद्दाख कॉपर, सॉरी ग्रीन कॉपर हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी काफी कॉमन है। लद्दाख कॉपर सेंट्रल एशिया तक है जी। नेक्स्ट जो जीनस है उसकी मुझे नॉलेज तो नहीं है बिल्कुल भी। हाइपोनेफिली, जो काफी कॉम्प्लेक्स जीनस है, और इसका अराउंड 15 स्पीशीज तो लगभग होगा हमारे वेस्टर्न हिमालय में, और हमारे जम्मू कश्मीर में इसकी 4 स्पीशीज हैं। और बाकी जो मैंने यहाँ पे तस्वीरें बताई हुई है वो सब ओलन बेक ऑथर की ही क्लिक करी हुई हैं या कलेक्टेड हैं। कुछ कश्मीर रीजन से हैं और कुछ जो है हिमाचल प्रदेश की स्पीति या बास्पा वैली से हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताई। जी जी, 15 species are in the Indian subcontinent, not in Western Himalayas. Most of them are found in Pakistan only. Okay. हाँ. So I am wrong here. वैगनेरी बलूचिस्तान में है सिर्फ, लाइट्रा चित्राल में है, लुपीना बलूचिस्तान में, इस तरह। हाँ ठीक है। हाइपोनेफली पल्चेला का मैं अगर इंडियन के वेस्टर्न हिमालय पार्ट का अगर मैं बात करूं तो हमारे लद्दाख में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है और उत्तराखंड में भी है, जिसका कॉमन नेम मुझे याद नहीं है। दूसरा है हाइपोनेफली पल्चरा। हाइपोनेफली पल्चरा का भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें हमारे इंडियन वेस्टर्न हिमालय का, तो इसमें लद्दाख में भी है, कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और
उत्तराखंड में भी है। और ये है हाइपोनेफ्ली चीना, जो हमारे लद्दाख में तो नहीं है ये चीना की स्पीशीज, बट हमारे जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट, इसके अलावा भी हमारे जम्मू कश्मीर में एक हाइपोनेफ्ली कोई निम्फा करके भी होती है, जो कि कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट स्पीशीज है स्यूडोकेजारा लिहाना, जिसका कॉमन नेम यहाँ पे क्रिसेंट रॉक ब्राउन करके लिखा हुआ है आईएफबी की तस्वीर में, जो कि हमारे लद्दाख रीजन में ही पाई जाती है। आई गेस लद्दाख के अलावा मुझे लग रहा है ये कहीं पे भी पाई नहीं जाती है इंडियन ये के भी पाकिस्तान में है यार। जी। तो इसका ये अंडर विंग अपर विंग देख सकते हैं, काफी यूनिक है। नेक्स्ट जो है, मैं कैरानासा जीनस पे आ रही हूँ, जिसमें ये सटायर फैमिली है, और ये स्पीशीज जो है कैरानासा ह्यूबिनेरी जैसा है। और इसकी भी हमारी जो कैरानासा जीनस है, इसमें भी अगर हम देखें तो 4 से 5 स्पीशीज हमारे इंडियन के वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। और अगर इसी कैरानासा का हम लिटरेचर में देखें तो एक रोहतंगा करके स्पीशीज आती है, जो रोहतांग पास यानी हिमाचल प्रदेश की एक एंडेमिक स्पीशीज है। और बाकी 3-4 जो भी हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन की स्पीशीज है, वो यहाँ पे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एरिया में देख सकते हैं। और इस जीनस का भी अगर हम देखें तो राइट फ्रॉम 1932 जैसे इवेंट्स में भी इसमें सब स्पीशीज लेवल पे काम हुआ है, और फर्दर उसके बाद टेलबोट में अगर आप देखें तो इसको स्पीशीज लेवल तक नैरो डाउन करने की कोशिश की गई है। अदरवाइज इसका तो मुझे लगता है कि इसका टेक्सोनमिक स्टडी के लिए जेनेटिलिया बेस पे जाना पड़ेगा अगर किसी को स्टडी करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने 2 वॉल्स बताई हुई, ये काफी रेयर स्पीशीज हैं, लेसियोमेटा मिनावा और किरीनिया कैशमीरेंसिस। जैसे डार्क वॉल है, और ये अपना ये येलो वॉल है, सॉरी लेसियोमेटा। ये जो डार्क वॉल है हमारे शायद उत्तराखंड में नहीं है, बाकी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, और हिमाचल प्रदेश में भी है, ये यहाँ के इंडिया के वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। और ये किरीनिया कैशमीरेंसिस तो चित्राल से लेके अपने कश्मीर तक है, और इसका इसका कोई भी रिकॉर्ड अभी तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से नहीं आया है। नेक्स्ट जीनस काफी कॉम्प्लेक्स जीनस है, पारालासा। इसकी मैंने एक स्पीशीज बताई हुई है, पारालासा मैनी। हमारे जम्मू कश्मीर में इसकी शायद 3 स्पीशीज हैं। और पूरे वेस्टर्न हिमालय की अगर बात करें, इंडियन वेस्टर्न हिमालय, उसमें टोटल 3 स्पीशीज हैं। एक तो पारालासा मानी है, पारालासा शलादा और पारालासा कलिंदा करके है। तो ये तीनों की अगर हम बात करें तो ये जो पैरालासा मानी है, ये हमारे लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, और हिमाचल प्रदेश में भी है, और उत्तराखंड में भी है। और दूसरा अगर हम शलादा की बात करते हैं तो वो हमारे लद्दाख रीजन में नहीं है। और थर्ड जो हमारी कलिंदा स्पीशीज है, वो हमारे चारों रीजन में पाई जाती है, लाइक लद्दाख में भी होगी, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, और उत्तराखंड में भी है। नेक्स्ट, टोर्टोइज शेल एग्लियस कश्मीरेंसिस। तो इसका काफी आम डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे वेस्टर्न हिमालय का, जैसे हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये अपना ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। और दूसरा रिजाना आती है, एग्लियस रिजाना, जिसमें हम इसको देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, और अपने कश्मीर एरिया में भी ये देखी जा सकती है। और एग्लियस लद्दाखियंसिस जो है हमारे कश्मीर रीजन को छोड़ के ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एरिया में भी देख सकते हैं, लद्दाख में भी, और उत्तराखंड में भी है ये। नेक्स्ट स्पीशीज कॉमा, जिसका पॉलीगोनिया भी है, या निम्फेलिस जीनस में भी आ जाती है। तो ये भी हमारे सिर्फ कश्मीर रीजन में ही पाई जाती है, ये जो कश्मीर कॉमा करके है। और दूसरा है निम्फेलिस जेंथोमिलॉस, जो लार्ज टोर्टोइज शेल है, ये भी हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब रीजन में काफी कॉमन स्पीशीज पाई जाती है।
नेक्स्ट जो जीनस मैं बता रही हूँ मेलिटाया, ये इसका हम देखें तो इंडिया के वेस्टर्न हिमालय में अराउंड 11 स्पीशीज है। नहीं मैं अगेन सब कॉन्टिनेंट अगेन हाँ, यस यस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 11 स्पीशीज है। अब अगर इस स्पीशीज की बात करते हैं तो ये काफी कॉम्प्लेक्स जीनस है। इसमें भी हम टेक्सोनमिक स्टडी के लिए हमें जेनेटिलिया का ही बेस पकड़ना पड़ता है। इसमें भी हम इजीली नहीं बता पाते हैं, क्योंकि अगर हम पुरानी स्टडीज को देखते हैं तो इसमें हम इजीली नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज है। इसका सब स्पीशीज सब इतना कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। तो हमारे यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की बात करती हूँ, तो हमारे जम्मू कश्मीर में एक ही सब स्पीशीज है, मेलिटाया आर्सीजिया, जिसकी सब स्पीशीज बलबीटा हमारे यहाँ पे पाई जाती है। बट रिसेंटली मैंने एक आई फाउंड बटरफ्लाईज पे रिकॉर्ड देखा है, मेलिटाया आर्सीजिया की सब स्पीशीज इरमा हमारे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर नीरज शर्मा सर ने फोटोग्राफ करी है किश्तवाड़ एरिया से। तो उस हिसाब से हमारे जम्मू कश्मीर में 2 सब स्पीशीज पाई जाती है मेलिटाया की। और अगर लद्दाख की बात करते हैं तो हमारे लद्दाख में एनोमेला समथिंग स्पीशीज थी, और बेलबीटा, ये 2 सब स्पीशीज हमारे लद्दाख में पाई जाती हैं। तो ये जो इरमा सब स्पीशीज है जो अभी रिसेंटली डॉक्टर नीरज शर्मा सर ने रिकॉर्ड करी है, उसकी तस्वीर मैं यहाँ पे शेयर कर दी हूँ। ये लेफ्ट में अपर विंग है और राइट में अंडर विंग है। नहीं, आई थिंक ये बलबीटा ही है। इरमा तो उत्तराखंड में होनी चाहिए। बट इफ दिस इट्स इज नेम्ड एज इरमा इरमा तो और उसको पहले हिमाचल में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बलबीटा है। ओके, मीन्स आई फाउंड बटरफ्लाई मिसआइडेंटिफाइड। पे जो रिकॉर्ड है मिस आइडेंटिफिकेशन है, सॉरी। या विदाउट कंफर्मेशन आई हैव यूज्ड दिस स्लाइड हियर। सो हमारे जम्मू कश्मीर में एक ही सब स्पीशीज है बालबीटा, तो इरमा का जो है ये मिस आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड है, ये भी बालबीटा ही है। यस। नेक्स्ट है आर्गाइनिस कमाला। यूजुअली ये सिल्वर स्ट्रीप्स में आती हैं, जैसे लेफ्ट साइड में आर्गेनिस कमाला है, राइट साइड में आर्गेनिस जैना देवा है। जैना देवा हमारे लद्दाख रीजन में काफी कॉमन है, उत्तराखंड में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। और कमाला का भी हमारे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और आई थिंक लद्दाख में भी ये काफी कॉमन है। तो इन दोनों स्पीशीज को देखने के लिए आप इन रीजन्स में आ सकते हैं कि काफी रेयर स्पीशीज है ये। नेक्स्ट कोलियास। ऐसे तो कोलियास की काफी सारी स्पीशीज हमारे जम्मू कश्मीर में 3 to 4 स्पीशीज हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 ही स्पीशीज की फोटोग्राफ बताई है जो कि रेयर है काफी। कोलियास इयोजीन, जिसको फेरी क्लाउडेड येलो भी बोलते हैं, और दूसरा है कोलियास लद्दाखेंसिस। तो थर्ड स्पीशीज हमारे जम्मू कश्मीर में है, आई थिंक कोलियास्टोलिस काना, नहीं, दैट इज नॉट इन जम्मू कश्मीर बट इन लद्दाख एंड उत्तराखंड ऑल्सो। तो ये स्पीशीज जो हैं अभी रिसेंटली ये भी एक फोटोग्राफ आई है जम्मू कश्मीर से, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड पार्क से, कोलियास इयोजीन की और कोलियास लद्दाखेंसिस। तो इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इयोजीन जो है हमारे लद्दाख रीजन में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, और उत्तराखंड तक इसकी रेंज एक्सटेंशन देख सकते हैं। और जो हमारा अपना ये कोलियास लद्दाखेंसिस है, इसका हमारे लद्दाख में तो है और हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, बट ये वाला स्पीशीज आई गेस कश्मीर में नहीं है, कोलियास लद्दाखेंसिस। और थर्ड स्पीशीज जो है यहाँ पे मैंने बताई नहीं है, दैट इज कोलियास टॉलिक्सेना, वो हमारे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश रीजन में ही है। नेक्स्ट 2 स्पीशीज मैंने बताई है यहाँ पे व्हाइट्स, एक पायरिस डियोटा है और दूसरी है स्मॉल कैबेज व्हाइट। पायरिस डियोटा का जो आइडेंटिफिकेशन है वो मोस्टली हम अंडर विंग से कर लेते हैं, जिसमें कि डल कलर की दिख जाती है। अदरवाइज इसको पायरिस इन कैनिडिया और ब्रेसिके के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं अगर इसका साइज वेरी कर जाए तो। अदरवाइज ये जो पायरिस डियोटा है हमारे कश्मीर और लद्दाख रीजन में काफी पाई जाती है, और इसका कोई भी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड से कोई भी रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। और पायरिस रेपे जो है मोस्टली लद्दाख और कश्मीर में पाया जाता है, और इस स्पीशीज का भी कोई रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से अभी तक नहीं आया है।
नेक्स्ट स्पीशीज है पोंटिया कैलिडीस, जिसको हम लॉफ्टी बाथ वाइट भी बोलते हैं। एम आई ऑडिबल ना? Yes. ओके। नेक्स्ट स्पीशीज है ये पोंटिया कैलिडीस, जो लॉफ्टी बाथ वाइट होती है, और ये स्पीशीज भी हमारे लद्दाख रीजन में भी है, जम्मू कश्मीर में भी इजिली आप देख सकते हैं, और मूविंग टू हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये चारों रीजन में इजिली आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट है पोंटिया क्लोरिडीस, जो स्मॉल बॉथ वाइट भी है। हमारे जम्मू कश्मीर में इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये लद्दाख लद्दाख रीजन में काफी आप इसको देख सकते हैं, और उत्तराखंड में भी इसका एक दो रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये मैंने ड्वार्फ बटरफ्लाई की एक फोटो शेयर करी है, जो बाल्टिया बुटलेरी जिसका साइंटिफिक नेम है, और बाल्टिया बुटलेरी भी हमारे कश्मीर रीजन में नहीं है। कश्मीर रीजन के अलावा ये बाकी तीनों पार्ट्स में देखी गई है, जैसे लद्दाख रीजन में भी है, उत्तराखंड में भी है, और हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो मोस्टली ये अगर हिमाचल प्रदेश के किसी एरिया में देखना है, तो ये मोस्टली खरदुंगला पास के आसपास ही देखी गई है, जब भी देखी गई है ये स्पीशीज। नेक्स्ट मैंने ये शेयर करी हुई है एपोरिया जीनस की दो स्पीशीज हैं, एपोरिया नेबिलिका और एपोरिया ल्यूकोडिस, जिसमें एपोरिया की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है ये। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एपोरिया ल्यूकोडिस, तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये दोनों स्पीशीज आई मीन इन सभी जगहों पे मिलती हैं। मतलब नेबिलिका एक्सेप्ट लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पाई जाती है, और एपोरिया ल्यूकोडिस की अगर बात करते हैं तो आई गेस इसका लद्दाख से अप टू उत्तराखंड इसकी रेंज एक्सटेंशन है। और ये मैंने एक हेयर स्ट्रिक शेयर करी हुई है, जो डॉक्टर नीरज शर्मा सर का क्लिक है, आईएफबी से मैंने पिक किया है। डल ग्रीन हेयर स्ट्रीक, ये रिसेंट रिकॉर्ड है हमारे जम्मू कश्मीर के एडिशन में। इसका जीनस है एसाक्योजिफाइरस इकाना। तो ये स्पीशीज भी काफी हमारे जम्मू कश्मीर, और आई गेस इसकी रेंज एक्सटेंशन हिमाचल प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है। ये तीनों रीजन में पाई जाती है, बट ये लद्दाख रीजन में आप नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने शो किया है पायरगस कैश्मीरेंसिस। पायरगस कैश्मीरेंसिस की रेंज एक्सटेंशन भी आई गेस लद्दाख में है, कश्मीर में है, और उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश से इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और नेक्स्ट ग्रेफियम यूरोस, जिसको हम 6 बार स्वॉरटेल भी बोलते हैं, जो हमारे अगेन लद्दाख में नहीं है, बट कश्मीर में है, उत्तराखंड में भी है, और हिमाचल प्रदेश में भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वेट, नेक्स्ट मैंने कुछ स्पीशीज यहाँ पे बताई हुई हैं, जो कि हमारे वेस्टर्न हिमालय, इंडियन पार्ट के वेस्टर्न हिमालय में काफी कॉमन स्पीशीज हैं, लाइक ग्रीन विंड वाइट है, टोरिकस हजारा, जिसको हम हजारा पैरोट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट स्पीशीज जैसे ये सिल्वर हेज ब्लू हो गया, डस्की हेज ब्लू हो गया, और मीडो ब्लूज जैसे पॉलीमेटस जीनस की मैंने पहले बात करी हुई है। आगे ऑरेंज बॉर्डर आर्गस या वाइट बॉर्डर आर्गस की वाइट बॉर्डर कॉपर की बात करते हैं। और ये यूएसपा मिलियोना जो वाटर हेयर स्ट्रीक है, ये हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में काफी कॉमन स्पीशीज हैं। इंडिया के रेस्ट पार्ट में इन स्पीशीज को हम नहीं देख सकते। और भी स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल वाइट स्पॉटेड हेयर स्ट्रीक है, और लेसियोमेटा मेरूला भी ये स्पीशीज है, जो स्कैस वॉल जिसको जिसको बोलते हैं हम। और जैसे इप्तिमा निरेडा, जैसे अकरम सर ने बात करी है कि लार्ज 3 रिंग भी है, जो हमारे वेस्टर्न हिमालय रीजन में पाई जाती है। और दूसरा ये इप्तिमिया निकाया, सॉरी
सित्सरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम। मूरेज 5 रिंग और निकायाज की जो 5 रिंग्स है ये हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में काफी कॉमन स्पीशीज हैं, और रेस्ट निर्माला, ये कैलिरिबिया जीनस की भी काफी स्पीशीज हैं। लाइक कॉमन आर्गस हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इवन लद्दाख एंड उत्तराखंड में ये काफी कॉमनली देख सकते हैं। और ये फ्रीक है नेक्स्ट कैलीनागा जीनस का जो है, हमारे जम्मू कश्मीर में एक ही इसका रिकॉर्ड है, कैलीनागा बुद्धा, मतलब ओल्ड लिटरेचर में इसका रिकॉर्ड है जो हमारे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और नेक्स्ट जैसे एडमिरल्स की बात करते हैं तो लिमनाइटिस जीनस का एक हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे व्हाइट एडमायरल है, ये हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। नेक्स्ट स्पीशीज की बात कर रही हूँ जैसे मिमाथिमा चित्रालेंसिस, इसका हमारे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड है, बट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या लद्दाख से इसमें कोई भी इसकी रेंज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रिसेंटली इसके रिकॉर्ड्स पाए गए। अर्लियर तो हमारे वर्षनी स्मेथासिक के जो कैटलॉग है उसमें ये मेंशन थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में है, बट अब ये मतलब ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि इसके फोटोग्राफिक रिकॉर्ड भी हमारे जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड हमारे जम्मू कश्मीर में फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जो है आई गेस इरफान जिलानी सर का है, कश्मीर कंगान एरिया से। एंड उसके बाद भी काफी रिकॉर्ड्स रामबन एरिया से भी आए हैं, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड से भी इसके काफी रिकॉर्ड्स आए हैं। सो इसकी रेंज एक्सटेंशन वेस्टर्न हिमालय अगर इंडियन पार्ट का देखें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है। और दूसरा ये जो क्लोजियाना जॉर्डोनी है, जॉर्डन सिल्वर स्पॉट, ये हमारे जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। अगर वेस्टर्न हिमालय का देखें तो इंडियन के वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में है, और आई गेस लद्दाख में इसका सब स्पीशीज आर्ब्यूसेंस है। और नो, इसके अलावा जेटोनी यस नॉमिनेट जर्डोनी, सबस्पीशीज है। ओके ओके तस्लीमा, अभी ये ओके लंबा हो गया। आई आल्सो सो मेनी स्पीशीज टू शो। ओके ओके आई आई विल एम स्टॉप। शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके ओके, आपको नजर आ रहा है? एक सेकंड अनवर भैया, हाँ अब स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, तस्लीमा ने अभी जो स्पीशीज दिखाई, काफी सारी स्पीशीज दिखाई, और मैंने इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया था इस सिलसिले में, बट मैंने जो इंडेमिक्स हैं वेस्टर्न हिमालयास की वो इकट्ठी करके रखी थी। इनफैक्ट ये जो कोलियास की स्पीशीज हैं काफी सारी, ये चाइना तक निकल जाती हैं। ये जो पैरगिस कैप्सुमिरेंसिस है, हाँ इंडिया के लिहाज से देखें तो ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही है। लेकिन अगर आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ग्लोबल रेंज देखें तो अब ये वेस्टर्न हिमालयाज के कौन सी स्पीशीज हैं जो वेस्टर्न हिमालयाज के इंडेमिक्स हैं, तो वो मैंने कलेक्ट किए हैं कुछ अबाउट 20 स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज, और किसी रीजन में नहीं पाई जाती। सबसे पहले तो एक्टिनोरा ही बहुत रेयर स्पीशीज है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले इसका पहला फोटोग्राफिक रिकॉर्ड इंटरनेट पे देखा, IFP आई फाउंड बटरफ्लाई वेबसाइट के ऊपर। एक ये हरियाणा से और एक उत्तराखंड से रिकॉर्ड था। बट मेरे एक दोस्त हैं हसन, सगीर हसन, उन्होंने 2018 में ये फर्स्ट टाइम क्लिक किया था, बट उन्होंने कभी इसको पोस्ट नहीं किया। ये एक्टिनोर रेडियंस वेन डार्ट चित्राल और पाकिस्तान में चित्राल और एबटाबाद और मुजफ्फराबाद, इन 3 जगहों पे है। और इंडिया में ये हिमाचल, उत्तराखंड और अभी रिसेंटली हरियाणा से रिकॉर्ड है। तो ये ना उत्तराखंड के ईस्ट में मिलता है और ना चित्राल के वेस्ट में अफगानिस्तान में मिलता है। सो ये एक वेस्टर्न हिमालयन एंडेमिक है। काफी लंबा होता जा रहा है तो मैं इसको क्विकली एक ओवरव्यू देता हूँ हर स्पीशीज का। रस्की ब्लैक पिन तस्लीमा ने भी अपने उसमें जिक्र किया। ये वेस्टर्न हिमालयन एंडेमिक है जो कि उत्तराखंड से ईस्ट में नहीं मिलता और पाकिस्तान से वेस्ट में नहीं जाता। और ये है वाइट हेयर स्टिक। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो स्टेरियम डेरिया है। ये इंडियन पॉपुलेशन जो है, हिमालयन पॉपुलेशन, इसको अलग स्पीशीज माना जाता है। पहले तो इसको सैसिनिड, स्टेरियम सैसिनिड के अंदर रखा जाता था। सो ये जो डेरिया स्पीशीज है पार्टिकुलर,
ये वेस्टर्न हिमालयन है, और कहीं भी नहीं पाई जाती। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न हिमालयन एंडेमिक्स, तो इसका मतलब है कि ये उत्तराखंड से वेस्ट में है और पाकिस्तान से ईस्ट में है, दरमियानी एरिया में है और सिर्फ हिमालय तक लिमिटेड है। वाइट बॉर्डर कॉपर, तस्लीमा ने भी जिक्र किया, एंडेमिक है, वेस्टर्न हिमालयन एंडेमिक। और हिमालयन वाटर हेयर स्ट्रीक, ये शायद नेपाल के भी वेस्टर्न पार्ट्स में है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मरी से लेकर वेस्टर्न नेपाल तक है। वेस्टर्न हिमालय बेसिकली हिमालय के नेपाल के वेस्ट में और पाकिस्तान का जो चित्राल सर्वात रीजन है उसके ईस्ट में जो हिल रेंज है उसको कहा जाता है। व्हाइट स्पॉटेड हेयर स्ट्रीक, ये भी एंडेमिक है। डस्की ग्रीन अंडरविंग, ये ट्रूली एंडेमिक है। बाकी कुछ ग्रीन अंडरविंग्स दिखाए तस्लीमा ने, वो वेस्टर्न हिमालय के एंडेमिक्स नहीं थे, वो कराकोरम में भी इंटर हो जाते हैं या और रीजन्स में, कुछ चाइना में भी इंटर हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे रीजन का ही एंडेमिक है। और ये है समुद्रा, प्लीबिजिस समुद्रा, इसका कुछ भी आप नाम ले सकते हो। IFB पे इसका नाम सी जेवल ब्लू है, तो अच्छा नाम है ये, इंग्लिश नेम। ये है प्लीबिजिस समुद्रा, ये लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाकी रीजन्स में कम है। सो बेसिकली ये ग्रेट हिमालयन जो रेंज है उसका उसका एक बटरफ्लाई है। ये नीचे कश्मीर या हिमाचल वगैरह में नहीं जाता। द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉपर, ग्रीन कॉपर, ये भी वेस्टर्न हिमालय का एंडेमिक है। और जलोका मेडो ब्लू एंडेमिक अगेन, ये आर्गेसिस भी तस्लीमा ने दिखाए, तीनों दिखाए और तीनों ऑलमोस्ट एंडेमिक हैं। एक जो है वो अफगानिस्तान तक जाता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इनमें से एक अफगानिस्तान में इंटर करता है और एक नेपाल तक जाता है। अदरवाइज ये वेस्टर्न हिमालय तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। ये तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, ये शायद सिर्फ कश्मीर में है और पाकिस्तान के कुछ एरियाज में है, लाइक नारान। दिस इज इसका तस्लीमा ने भी जिक्र किया था। स्पॉटेड मीडो ब्राउन, हैप्नोफिली एक्वेनम्फा, स्पॉटेड मीडो ब्राउन इसको कहा जाता है। और ये है कश्मीर मीडो ब्राउन। इसको पहले और अभी तक काफी सारे लोग इसको हैप्नोफिली चीना के अंडर रखते हैं, बट कश्मीरी का इज अ सेपरेट स्पीशीज नाउ। इसको कश्मीर मीडो ब्राउन कहा जाता है और इसकी भी काफी रिस्ट्रिक्टेड रेंज है, ये शायद हिमाचल में भी इंटर नहीं करता। और येलो वॉल, पहले इसको क्रेनिया एवर्समानी कहा जाता था, लेकिन अब जो कश्मीर पॉपुलेशन है या वेस्टर्न हिमालयन पॉपुलेशन है जो चित्राल से स्टार्ट होती है, इनफैक्ट अफगानिस्तान से स्टार्ट होती है और कश्मीर तक जाती है, इसको अब सेपरेट स्पीशीज माना जाता है, क्रेनिया कश्मीरेंसिस। सो इसको कश्मीर वॉल कहा जा सकता है। पहले इसको येलो वॉल कहा जाता था जब ये एवर्समैनी की सब स्पीशीज होती थी। तो मेटामेरुला स्कैफ वॉल, इसको कश्मीर वॉल भी बोला जाता है और इसकी बहुत ही लिमिटेड रेंज है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन में। शायद ये पाकिस्तान के सिर्फ काखान में पाई जाती है और पाकिस्तान में और किसी जगह पे नहीं पाई जाती। करनासा का जिक्र भी तस्लीमा ने किया, उसमें काफ़ी सारी स्पीशीज थी। पाकिस्तान में करनासा की आई थिंक 10 और स्पीशीज हैं। कुछ स्पीशीज पाक अफगान एंडेमिक है और कुछ स्पीशीज पाक इंडो पाक एंडेमिक्स हैं। तो उनमें जो दो ये स्पीशीज हैं, ये हमारी वेस्टर्न हिमालय की एंडेमिक स्पीशीज हैं। एक तो करनासा एस्टोरिका, एस्टोरा आर्गस, एस्टोर सेटर, और दूसरा करनासा मोडेस्टा, मोडेस सेटर। ये एक छोटे से एरिया में जो कि जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख एरिया है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं और इनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वेस्टर्न कोटोरा जिक्र किया इसका पहले मैंने, ये भी वेस्टर्न हिमालय की एंडेमिक है, नेपाल तक हार्डली जाती है या उत्तराखंड तक। इसका भी तस्लीमा ने अभी जिक्र किया है, मेमेथायमा चित्रालेंसिस। एक और साथ में ही मैंने मेमेथाया अम्बिका की तस्वीर भी लगाई हुई है। मेमेथाया अम्बिका जो है पूरे इंडिया में काफ़ी वाइड रेंज है इसकी, लेकिन जो मेमेथायमा चित्रालेंसिस है वो सिर्फ चित्राल से लेकर और कश्मीर तक ही पाई जाती है और ये भी एक एंडेमिक है। वाइट एडमिरल्स की 3 स्पीशीज हैं,
ये पहले सब ट्रिवाना के अंडर आती थी, अब इसको तीन में डिवाइड किया गया है, 3 स्पीशीज में डिवाइड किया गया है। वन इज ट्रिवाना जो काफी वाइड रेंज रखती है। दूसरी है लेगस, ये सिर्फ कश्मीर रीजन तक है, हिमाचल में भी नहीं जाती। और तीसरी है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ मैंने नाम, हेडास्पिस। तो ये अब 3 स्पीशीज बन गई हैं और तीनों स्पीशीज जो हैं वेस्टर्न हिमालय के ऑलमोस्ट एंडेमिक है। सिर्फ एक स्पीशीज जो है ट्राविना हेडास्पिस जो सबसे नीचे मैंने दिखाई है, ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। अदरवाइज दीज 3 आर एंडेमिक्स। और इसका भी तस्लीमा ने जिक्र किया, जेडोनी का एंडेमिक है वेस्टर्न हिमालय की। और ये बलबीटा जिसका अभी थोड़ी देर पहले तस्लीमा बोल रही थी, ये सारी चीज़ें मैंने की हुई थी। बलबीटा भी सिर्फ कश्मीर रीजन तक ही है। और अब मैं कुछ क्लासिफिकेशन बता दूं कुछ स्पीशीज की जो इनको अभी भी समझा जाता है, ओल्ड टेक्सोनॉमी फॉलो की जाती है। और अब काफ़ी सारी चीज़ें स्प्लिट हो गई हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ है कि आपको जो नंबर ऑफ स्पीशीज आपके रीजन में वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मिलिटाया आर्सिसिया, तस्लीमा जस्ट टोल्ड के मिलिटाया आर्सिसिया बल्बीटा, तो ये अब 4 स्पीशीज में डिवाइड हो गई है। आर्सिसिया जो है वो ईस्टर्न हिमालय में है, सिक्किम साइड पे, बल्बीटा कश्मीर में है। एमोनीला का जिक्र भी तस्लीमा भी कर रही थी, वो सिर्फ लद्दाख में पाई जाती है। और सिंदूरा आई थिंक ये उत्तराखंड साइड पे है। और इरमा स्पीशीज सब स्पीशीज का मुझे मालूम नहीं, वो आपके उत्तराखंड में ही है। और हेडास्पिस मैंने अभी बताया, 3 में डिवाइड हो गया है। और ये भी पहले एवर्समानी के अंडर आता था, अब ये अलग स्पीशीज है, कश्मीरेंसिस। अच्छा, हाइपोनोफिलिपिला ये भी मैंने जिक्र कर चुका हूँ कि पहले ये चीना के अंडर आती थी। ऊपर वाली जो रो है उसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे कश्मीरी का है, कश्मीरी का अलग स्पीशीज बन चुकी है। सो आइंदा इसको कश्मीरिका के नाम से लिखा हुआ पुकारा जाए। अच्छा, इसमें मैंने कुछ स्पीशीज की जस्ट नाम लिखे हुए हैं जो जो जिनेरा जो है पाकिस्तान में जिनकी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक तो हाइपोनोफिली है, वो उसकी पाकिस्तान में लाइक 10-12 स्पीशीज पाई जाती हैं और ये उनकी लिस्ट मौजूद है। इसमें लुपिना है, कश्मीरी का है, बल्कि तस्लीमा ने इसका जिक्र भी तस्लीमा कर चुकी है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। कारानासा जीन्स का भी तस्लीमा जिक्र कर चुकी है। 10-12 स्पीशीज हैं पाकिस्तान में, मोस्टली हिंदू कुश में पाई जाती हैं या कराकरों में पाई जाती हैं। लेस्योमाटा वॉल ब्राउन की पाकिस्तान में 6 स्पीशीज पाई जाती हैं, वाइल इंडिया में इसकी 3 स्पीशीज पाई जाती हैं। और इन 6 स्पीशीज में जो हैं 3 एंडेमिक टू पाकिस्तान है। मिलिटाया जिन्स का भी तस्लीमा जिक्र कर चुकी। मिलिटाया की पाकिस्तान में 11 स्पीशीज हैं और जो स्पीशीज हम शेयर करते हैं, द ओनली मिलिटाया स्पीशीज दैट वी शेयर इज बल्बीटा, जिसका अभी जिक्र हो चुका। इसके अलावा परनेसियस की पाकिस्तान में 12 से 13 स्पीशीज मौजूद हैं। और कोलिया सीनस का भी जिक्र हुआ, इसकी भी पाकिस्तान में 8-9 स्पीशीज मौजूद हैं। पोलियोमेटिस की पाकिस्तान में 7 स्पीशीज हैं और स्पेलिया जीनस जिसकी पाकिस्तान में अगेन 7 स्पीशीज हैं। इंडिया में पहले 2 स्पीशीज थी, बट रिसेंटली एक न्यू स्पीशीज रिकॉर्ड हुई इंडिया से, स्पेलिया जीब्रा, जो बायो नोट्स पीटर समिट, ये बायो नोट्स में ये पब्लिश हुई। ये आई थिंक इंडिया की लिस्ट में रिसेंट मोस्ट एडिशन है, स्पेलिया जीब्रा। ये रिकॉर्ड हुई थी राजस्थान से। और ये हमारे पेपर का जिक्र हम कर भी चुके, जो मैंने, तस्लीमा ने और सज्जाद हुसैन पारे साहब ने पब्लिश किया। इस साल जून में ये आया था और हमने इसके ऊपर मिलकर काम किया। जम्मू कश्मीर की चेकलिस्ट जो डेवलप की, दैट वाज द फर्स्ट एवर कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट इसमें कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। अभी ये जून में लिस्ट आई है और उसके बाद तस्लीमा कितनी स्पीशीज ऐड हो गई हैं? 2 से 3 आई थिंक एडिशन, 2 और ऐड हुई है, 2 सारंगेसा ऐड हो गई। पुरेंद्रा और ओडोंटोपटाइलम एंगुलेटा, ये बोथ आर तो हेस्पेरिड्स। ये एक्सप्लोरेशन का काम, बटरफ्लाई की एक्सप्लोरेशन का काम कभी भी नहीं रुकता, या किसी भी लाइफ फॉर्म है उसकी एक्सप्लोरेशन का काम कभी नहीं रुकता। अभी पिछले 5 साल में हमने एटलीस्ट
10 स्पीशीज पाकिस्तान की लिस्ट में ऐड की हैं, और बर्ड्स की शायद पिछले 10 साल में हमने 20 से 25 स्पीशीज ऐड की हैं. सो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ अवर वर्क इज कि ये कभी खत्म नहीं होता, अनएंडिंग है ये. इसमें नई नई चीजें एक्सप्लोर होती रहती हैं. वी people of Western Himalayas are very lucky, especially those which are living in Jammu and Kashmir and Ladakh, GB or any region of Pakistan. वहाँ पे अगर कोई बटरफ्लाई पे काम करता है तो उसके लिए इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये उसमें करने को बहुत कुछ होता है, उसमें डिस्कवर करने को बहुत कुछ होता है. अभी भी there are so many treasures which are hidden in the mountains of Pakistan, in the mountains of Ladakh as well. जैसा मैंने अभी तुरानाना चित्राली का जिक्र किया, it is clearly something different, at least different subspecies from चित्राल. इसका रीजन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है चित्राल के साथ, मैंने अभी आपको तो पिक्चर भी दिखाई थी, एक दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर, तो शंदूर से जस्ट बिलो वो चीज रिकॉर्ड हुई, और दरमियान में लाइक 5-7, आई कैन नॉट एस्टिमेट एग्जैक्टली, लेकिन बहुत ह्यूज डिस्टेंस है लद्दाख और शंदूर के बिटवीन. तो इतनी डिस्जंक्ट अगर पॉपुलेशन है तो ये दो ये सेम सब स्पीशीज से बिलोंग नहीं कर सकती. दैट्स क्लियर. तो लद्दाख पे अगर किसी को ये मिलती है, एंड आई होप के बहुत सारे लोग अगर ये सुन रहे हैं, क्यूरियस लोग हैं, ये जो पैशनेट हैं बटरफ्लाइज के मामले में, तो वो लाजमन तुरानाना के पीछे जाएंगे. मेरे काफी दोस्त हैं वहाँ पे जो लद्दाख जाना चाहते हैं या जाते रहते हैं, तो उनको भी मैं ये बता चुका हूँ कि आप जब भी जाओ तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे लिए है लद्दाख में वो तुरानाना है. सो हम मिलके कर सकते हैं. ये कुछ स्पीशीज हैं जो पाकिस्तान में या तो डाउटफुली रिकॉर्डेड हैं या तो बिल्कुल अनरिकॉर्डेड हैं, या ये पार्टीशन से पहले कहीं रिकॉर्ड हुई थी और दे नीड टू बी रीडिस्कवर्ड. बट दीज 5 स्पीशीज आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अफगानिस्तान, और दरमियान में आता है पाकिस्तान. और वी नीड दी स्पीशीज. हमें मालूम है कि ये स्पीशीज, दी स्पीशीज आर समवेयर इन पाकिस्तान, बट अभी तक हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाए. ये सेम बात कि करने को बहुत कुछ है हमारे पास. और ये लद्दाख, ये जिसका मैंने अभी आपको बताया कि तुरानाना चित्राली अकरम अवानी एंड तुरानाना चित्राली लद्दाख पॉपुलेशन. थैंक यू. मैंने लास्ट मैसेज ये देना था कि हमें ये जो हमारी फील्ड है बटरफ्लाइज की या बर्ड्स की या कुछ भी है नेचर से रिलेटेड, उसमें वाकई में ये बॉर्डर्स मैटर नहीं करते. वी डोंट केयर अबाउट कि ये स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है या यहाँ पे पाई जाती है या यहाँ पे पाई जाती है. वी ओनली लव ऑल द क्रीचर्स, ऑल द बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स एंड जो भी लाइफ फॉर्म हो. हम हमारा सारा फोकस उस पे होता है, होना चाहिए. एटलीस्ट मेरा, तस्लीमा का और मेरे जितने भी इंडिया में देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी जो मेरे दोस्त हैं बटरफ्लाई फील्ड में या बर्ड फील्ड में. सो स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पी बटरफ्लाइंग, हैप्पी बर्डिंग, हैप्पी संडे. हैप्पी. No, my Sunday is over now. Okay. अगर आपको कुछ पूछना है तो sorry I couldn't present so well. No, it was a lovely presentation. It was a really lovely presentation. Thank you. Akram Bhaiya had a lot of technical difficulties today, but still we fixed. Somehow we managed to. Yeah. So great. And something that we are talking about today, that the borders. So a person asked me this question like, are the Indian birds different than the birds found in Pakistan and Bangladesh? So I told them one thing, that these borders that we have created with barbed wires, we humans have put up these barbed wires and walls. Birds, snakes, they don't care about these. They just find the gap and they just cross them. And they don't need passport, visa and stuff. True that.
Hey, For one point that, I wanted to add, बल्कि मैंने बोलना भी था जब मैंने लास्ट में आपको वो पिक्चर दिखाई ये चित्राली लद्दाखेंसिस की, तो जब मैंने आपको ये स्पीशीज दिखाई विच आर फाउंड इन अफगानिस्तान एंड इंडिया बट yet unrecorded in Pakistan. तो वी डू कोऑर्डिनेट. आई एम आल्सो इनटू बर्ड वाचिंग, और हमारी नजर होती है, अगर हम सिंध में बर्ड वाचिंग करने के लिए गए हैं तो हमारी नजर होती है गुजरात में, एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद बर्ड वाचर्स एंड बटरफ्लाइज ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, and we coordinate with birds and butterflies of Punjab, of Jammu, Taslima, and Kashmir में जितने भी लोग काम करें, and we know if a bird turns up, for example, तस्लीमा एंड आई डू शेयर, हम अपने साइटिंग्स या अपने रिकॉर्ड या अपना जो भी डेटा है वो शेयर करते हैं, तो आई नो तस्लीमा को जो चीज जम्मू में मिली है, तो देयर आर like 80 to 90% chances कि वो हमें सियालकोट में मिलेगी. सियालकोट एंड जम्मू वर ट्विन सिटीज, तो उनमें एक डिस्टेंस कुछ भी नहीं है. देयर आर स्पीशीज जो जम्मू में हैं बट अभी तक सियालकोट में रिकॉर्डेड नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो सियालकोट में सूनर और लेटर रिकॉर्ड हो जाएंगे. डेफिनेटली. Yeah. और जो बॉर्डर्स पॉलिटिकल इश्यूज है, इनको लेके टेंशन नहीं लेके हम लोगों को अपना पैशन, हॉबी, व्हाटएवर, आवर लव फॉर द नेचर, हम लोगों को ये शेयर करना चाहिए. एंड वी ऑल आर यूनाइटेड बाय दिस नेचर. Exactly, we are. So thank you. It was a great, interesting session. Thank you, Taslima Di. Thank you, Akram Bhaiya. Thanks a lot. Thank you. On behalf of Wings, Thank you. I'm really honored to host this webinar with you guys. And thank you for taking out your time. I know you guys are very busy with a lot of new discoveries. So thanks for taking out this time. Thank you, Akram Bhaiya. Thank you, Taslima Di, again. We have one question from Salim J. Monarch. The question is, Speaker Sahib, Mohammad Asghar Hassan का research paper भी discuss करो. Okay. Mohammad Asghar Hassan is not working on butterflies. That's why the topic was about butterflies. Right. He's a very good entomologist. वो जिस चीज पे काम कर रहे हैं, I cannot even pronunciate that. किस पे काम कर रहे हैं, तो सीमा knows that. सिरफिडी फैमिली के पेपर्स मैंने देखे हैं. अब आई डोंट नो कि सिरफिडी पे हैं या मतलब एक छोटी सी मक्खी है जिसपे वो काम कर रहे हैं. So makhi is not our field. That's why we didn't discuss about that. Okay. So I guess someday we should bring Asghar Hassan to our talk show webinar if possible. And this point is being noted, and I would take it up to the governing body. Thank you guys. Thanks to the audience who have been with us through the whole webinar on a Sunday evening. We all know Sunday evenings are busy evenings, but thank you, audience, and especially thanks to Akram Bhaiya and Taslima Di for taking out your time. Thanks again. And I hope we guys meet someday. Wings, if possible, will take our team and go and meet you guys where you work. Hopefully. And hopefully. And take care, guys. Thank you so much. And I'm ending the broadcast now. Okay. Thank you, audience. You have been a beautiful Goodbye. audience. बाय बाय. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. Hafiz.